हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th सीसी में हमने चैप्टर 2 के सेक्शन जो थे उसका रिवीजन कर लिया था। अब उसमें सिर्फ लेटर्स ही बाकी हैं, लेकिन लेटर्स जो है वो आपको होम असाइनमेंट में मिलेंगे और उसमें से 2 या 3 मतलब सारे लेटर्स हमने किए हैं। कॉन्सेप्चुअल जो लेटर्स हैं वो आपको सिर्फ पढ़ने हैं। आप 2 या 3 लेटर ही सिर्फ रिवीजन में लिखना, वो भी आपको जो होम असाइनमेंट मिलेगा नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में वही आपको लिखना है। सारा रिवीजन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आपने सब कुछ कर लिया है और हमने भी सब कुछ किया है, तो ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है सारे लेटर्स लिखने की। आज हम एसपी में चैप्टर 2 है जो ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, उसका जो रिवीजन है वो करेंगे। रिवीजन में हम जो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिवाइज नहीं करते, हम रिवीजन में सिर्फ समरी देखते हैं। मेन क्वेश्चंस जो होते हैं उनके जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ देखते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो डिटेल में सब कुछ हमने स्टार्टिंग में कर लिया है। जब हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया तब ये सब कुछ हो गया है, इसलिए हम रिवीजन में उसकी समरी एंड सेक्शन ए बी जो भी उसके होते हैं वो सिर्फ करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में एक समरी का एक 2 पेज दिए गए होते हैं कि व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जब पूरा चैप्टर रिवाइज करना है तब। Limitations of business formation has given birth to the other. Company formation is considered one of the best type of formation. A very important feature of this formation is that shareholders may sell purchase their shares freely. Meaning of share transfer. Share transfer का meaning क्या है? तो when a shareholder in anticipation of approval of a company voluntarily waives his ownership of shares in favor of some other persons, and when share is a transfer of shares, it is called transfer of share. तो इसको transfer of share बोलते हैं। Importance क्या है शेयर ट्रांसफ़र का? Shareholder has full right to sell, gift or lease his shares. Transfer generates income for government by stamp duty, तो इसका ये importance है। Shareholder gets cash by selling its shares. Purchaser gets sales. Cash flow moves from insufficient units to sufficient unit. Shareholder is benefited by price variations. Share market is growing. Feed transaction bookshops of company formation. नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर शेयर ट्रांसफ़र। शेयर ट्रांसफ़र की प्रोविज़न क्या है? तो शेयर्स आर ऑफ 2 टाइप्स फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र के व्यू पॉइंट में शेयर्स के 2 टाइप्स है। फर्स्ट है फिजिकल शेयर्स एंड सेकंड है डीमैट शेयर्स। तो प्रोविज़न फॉर फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र क्या है कि शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म इज एसेंशियल फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर. Attachment letters of share certificate is essential. There shall be no dues on call money. There shall be no objection by applicant. Satisfactory evidence shall be provided in case of loss of share transfer form filled and signed by both parties. Company may utilize lien right to collect its debt. Proper stamp duty shall be affixed. New share certificate shall be issued to new shareholder. If register of a company or court ban the transfer, then share transfer will not be executed. Share transfer will be done according to the provisions of articles of association. Name on shareholder is continued up to the completion of transfer of shares. Original shareholder is enjoy all right up to the transfer of shares in single person company. On that of a sole shareholder, a nominee is to be identified and share is to be transferred on the name of nominee. A nominee can nominate an other person. प्रोसीजर फॉर शेयर ट्रांसफ़र क्या है? तो ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल शेयर एंड ट्रांसफ़र ऑफ डीमटेरियलाइज्ड शेयर
इसके दो जो टाइप्स हैं, शेयर ट्रांसफ़र फॉर प्रोसीजर ऑफ फिजिकल शेयर्स। तो उसमें क्या है कि टू रजिस्टर द शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म, सबसे पहले रजिस्टर करना है। टू फिल फॉर्म डिटेल्स इन ऑफ बोथ पार्टीज, टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट टू रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, to received from instrument and share certificate, to issue notice regarding share transfer, to pass resolution regarding approval of share transfer, to enter into register of members, to remit new shares certificate to new shareholder. If a partial share transfer and physical share, then first of all shareholder has to go for a split of share by applying to the company. After split of share, the above procedure is to be followed. Next जो है transfer procedure for demat shares. According to the current provisions of law, share cannot be sold or purchased in physical form. This type of share have to be converted to demat form. After conversion, these shares are with the depository participant. Company can see full shares on specified website. While selling, purchasing such shares, the shareholder has to contact the depository agent with which he has to open demat account. He has to submit instruction sheet stating all details. According to instruction, slip are sold and purchased by depository participants agents online. Sales are thus debited or credited in a shareholder's account. ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर ट्रांसफ़र। सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या है, ये सारा हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि सारा कुछ हमने एक बार कर लिया है, ये सिर्फ रिवाइज ही हो रहा है। सेक्रेटरी हैज़ टू सी दैट द फ्यूचर नो टाइप लिटिगेशन शुड बी अराइज. He has also seen that provisions of articles of association are followed legally and properly. सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ क्या है, तो टू वेरीफाई शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म, टू वेरीफाई प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी ऑफ फिक्स्ड, टू वेरीफाई सिग्नेचर्स ऑफ विटनेस, टू इश्यू रिसिप्ट फॉर शेयर इंस्ट्रूमेंट, टू एंटर इनटू रजिस्टर, टू पास रेजोल्यूशन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, to enter transfer in share transfer, to prepare new share certificate, to send new share certificate to new shareholder, to follow provisions of articles of association. तो ये सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ थी. नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, कंपलसरी शेयर ट्रांसफ़र. ट्रांसमिशन ऑफ शेयर को कंपलसरी शेयर ट्रांसफ़र भी बोलते हैं. इन सर्टन सिचुएशंस शेयर ट्रांसफ़र बिकम कंपलसरी लाइक डेथ, इंसॉल्वेंसी और अनसाउंड कंडीशन ऑफ माइंड. सर्कमटेंसेस क्या है, तो व्हेन शेयर होल्डर डाइज, इंटरस्टेट हैज़ सक्सेसर. व्हेन शेयर होल्डर डाइज, इंटरस्टेट हैज़ नो सक्सेसर. शेयर होल्डर बिकम insolvent. Shareholder is declared of unsound mind. In case of a single person company, sole shareholder dies. अब प्रोसीजर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या है, टू इन्फॉर्म कंपनी, टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स फॉर ओनरशिप, टू इश्यू नोटिस बाय कंपनी, रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टू इश्यू न्यू शेयर सर्टिफिकेट एंड एंट्री इन टू द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. अब लास्ट पॉइंट जो है कि डिफरेंस बिटवीन शेयर ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन, तो उसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं कि सरकमटेंसेस क्या होती है अलग अलग शेयर ट्रांसफ़र में और ट्रांसमिशन में, दोनों में अलग अलग होती है. कौन कौन सी होती है कि जब शेयर ट्रांसफ़र होता है तब कौन सी सरकमटेंसेस से होता है, तो शेयर ट्रांसफ़र जो होता है, इट इज़ अ वॉल्यूंटरी ट्रांसफ़र. शेयर होल्डर मे ट्रांसफ़र शेयर्स एट एनी टाइम. फिर ट्रांसमिशन में क्या होता है, डेथ, इंसॉल्वेंसी, ये सारी चीज़ें होती है तब. नेक्स्ट है वो कॉन्सेंट. तो जो शेयर ट्रांसफ़र है वो वॉल्यूंटरी है एंड ट्रांसमिशन जो है वो कंपलसरी है, तो उसका कॉन्सेंट होता है. नेक्स्ट कंसिडरेशन, तो शेयर ट्रांसफ़र अराइज ड्यू टू वैलिड एग्रीमेंट ऑफ टू पार्टीज, सो कंसिडरेशन इज एसेंशियल. एंड ट्रांसमिशन में क्या है, शेयर होल्डर लूजेस ऑनरशिप. फिर उसमें स्टैम्प ड्यूटी है, तो स्टैम्प ड्यूटी ट्रांसफ़र में नेसेसरी है और ट्रांसमिशन में उसकी कोई इतनी ज़रूरत ही नहीं है. मेंबरशिप जो है वो,
तो मेंबरशिप ट्रांसफ़र से मिलती है, मेंबरशिप है वो शेयर ट्रांसफ़र से मिलती है। और ट्रांसमिशन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज़ इंटाइटल्ड टू राइट्स ऑफ अ मेंबर एंड कैन क्लेम डिविडेंड। प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं एंड प्रोविज़न आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की लगती है ट्रांसफ़र में, जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेंड्स एविडेंस सपोर्टिंग टू द राइट्स ऑब्टेन थ्रू कोर्ट ऑफ द कंपनी एंड गेटिंग हिज नेम रजिस्टर्ड एज अ मेंबर। तो ट्रांसमिशन में कंपल्सरीली होता है। रिफ्यूज़ल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिफ्यूज़ टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इफ सच रिफ्यूज़ल इज इन इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। जनरली द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज़, ट्रांसमिशन रिफ्यूज़ नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स डज नॉट हैव। नेक्स्ट इज राइट टू गो टू अ ट्रिब्यूनल। तो इफ अ कंपनी रिफ्यूज टू शेयर ट्रांसफर विथ अ वैलिड रीजन, shareholders has right to go to a tribunal. The company cannot refuse transmission, so the question of going to tribunal does not arise. So आज हमने चैप्टर नंबर 2 का सारा जो समरी है वो कंप्लीट किया, कंक्लूजन देखा। अब हम चैप्टर नंबर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, MCQs है, जो आपकी एक्सरसाइज में है, आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो आपके लिए इनफ है, और आपको एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस करने हैं तो वो मैंने आपको वीडियो के एंड में अब एक PDF दिखाई देगी, एक फ़ोटो दिखाई देगा, उसमें से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो रिवीजन में लिखने हैं। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फॉर शेयर होल्डर शेयर्स आर मूवेबल एसेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैश एसेट के इमूवेबल एसेट, तो आंसर इज ए मूवेबल एसेट। क्वेश्चन नंबर 2 शेयर मार्केट इज अ मार्केट ऑफ स्पेक्युलर्स, barometer of development of country, it is a cash market and it is a product market, the answer will be option B, barometer of development of company. In share transfer, if there is an application of objection, no problem arises, transfer is done subsequently, objection is ignored, okay, company will not approve transfer. If transmission process is not completed, dividend right cannot be availed, dividend is received afterwards, dividend right is available, dividend is deposited in country, so option C will be answer, dividend right is available. Question 5, in transmission of shares, stamp duty is to be affixed, stamp duty is not necessary, stamp duty is to be affixed afterwards, okay, stamp duty will be exempted by government, the answer will be B, stamp duty is not necessary. Question 6, if shareholder is declared insolvent by court, share transfer will be executed, share transmission will be executed, transfer will be not be executed, share transfer will be done in future, the answer will be option B, share transfer will be transmission will be executed. Question number 7, in the demat account of a shareholder, a company may make changes, company may make changes in partial, company cannot make changes, the company may make change afterwards, so demat account में company cannot make any change. Question number 8, if shareholders dies without making will and has no successor, तो क्या government will forfeit the shares, company will forfeit, के shares will be transferred to charitable trust, the answer will be court will appoint administrator, option C. If shareholder is declared insolvent, तो compulsory transfer shall be done, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन A. In voluntary transfer, there is no requirement of consideration, consideration is not given, consideration is there, तो voluntary transfer में consideration होता है. In case of compulsory transfer, consent is not required. तो ये क्वेश्चंस हमने किए. नेक्स्ट जो 1 लाइन वाले क्वेश्चन आंसर्स जो है वो अब हम करेंगे. तो 1 लाइन वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें फर्स्ट है, हाउ डिड कंपनीज कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप हैव गिवन बर्थ टू कंपनी. इफ़ आपको ये रीडेबल नहीं है, रीडेबल ही है वीडियो में, लेकिन अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है ये पढ़ने में, तो मैं पूरा आंसर बोल रही हूँ इस वीडियो में, तो ये पूरा आंसर आप सुन सकते हो. इफ़ आपको ये रीडेबल नहीं है तो ये पूरा आंसर मैं वीडियो में बोल भी रही हूँ,
तो आप लिख पाओगे ऑडियो सुन के भी। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी? तो फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, लीगल एंड आर्टिफिशियल एंटिटी एक्सेट्रा आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। क्वेश्चन 3, when is the receipt for instrument dispatched? Once receiving the transfer instrument along with the share certificate, the company secretary issues a receipt for instrument. Question 4, where can a demat account open? So investor has to open demat account with a depository participant in India. NSDL or CDSL are functioning as an agent for deposit caretaker. On behalf of these institutions, PSU Bank for private bank and other financial institution open demat account. Question 5, when is the entry made in register of members? So after passing the resolution of transfer of share, the name of a transferor is deleted from the register of members and that of transferee added. Question 6, how can a company observe a shareholder's demat account? So the company can observe shareholders demat account on website provided by NSDL or CDSL. When will court appoint trustee or guardian? So when a shareholder is declared to be lunatic or unsound mind, a court appoint trustee or guardian. Question 8, आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि हाउ गवर्नमेंट गेट इनकम ड्यू टू शेयर ट्रांसफर? तो ड्यू टू शेयर ट्रांसफर गवर्नमेंट गेट इनकम बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज टैक्स ऑन इट। तो आज हमने जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं कि एग्ज़ाम में सेक्शन बी में पूछे जाते हैं वो हमने कंप्लीट किए हैं। आपको होम असाइनमेंट में ये क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है जो हमने आज किए, लेकिन आपके स्क्रीन पे आपको जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो आपको सीसी के चैप्टर नंबर 2 में रिवीजन में लिखने हैं। ये इसमें सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, सेक्शन बी के, सी के एंड डी के। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको होम असाइनमेंट में लिखने हैं और आपको ये रिवीजन में लिखना है। नोटबुक में तो आपने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, लेकिन इतने ही क्वेश्चंस जो बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस है, सेक्शन सी में 2 एंड सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस हैं, वो आपको चैप्टर नंबर 2 के रिवीजन में ये तीनों सेक्शन में लिखना है। और ये जो होम असाइनमेंट है वो टाइम टू टाइम सबमिट करना है, क्योंकि नोटबुक चेकिंग के लिए अभी आने वाली है। तो आपको होम असाइनमेंट टाइम टू टाइम सबमिट भी कर देना है। और आपको प्रिपरेशन के लिए ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं वो आपको हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने किया है रिवीजन में इतना ही आएगा, लेकिन डेफिनेटली हमने जब चैप्टर एक्सप्लेनेशन में जितना किया था उसमें से आएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में से ही पेपर होता है, उसके बाहर से नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि रिवीजन करें उसमें से ही पेपर होता है, ऐसा बहुत छोटे स्टैंडर्ड में होता था, अब नहीं होता। अब हमको सारा कुछ पढ़ना पड़ता है और उसमें से पेपर होता है। सो आपको पूरी टेक्स्ट बुक रीड करनी है। ये रिवीजन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा टू अपीयर इन एग्ज़ाम। थैंक यू।